Hello, Dr. Pramila. How are you? Hi, I'm good. Thank you very much. Welcome to the Founders Adda podcast. And this is the second episode of Founders Adda podcast. And we are very pleased to have you on our show. So, I would like you to introduce yourself to our audience जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. What do you do? What your brand is? So, एक छोटा सा ब्रीफ आप दे दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं. Absolutely. और मेरा pleasure है कि I'm the second person in your podcast. I think it's my privilege. And yeah, hi, I'm Dr. Pramila Naidu. I'm a pediatric dentist. I've been practicing for more than 20 years. And I've been building exclusive dental clinic for children for past 5 years. It's called as Dr. Tooth Little. And we are very happy to say that this year we'll be 7 clinics across Bangalore, and we are looking forward to have this exclusive spaces for children across the country. Thank you. Thank you so much for the introduction. So let's start this podcast. And सबसे पहले मेरे पास एक बहुत exciting question है. When I was doing your research, I saw your bike. I saw that you have a Triumph Tiger जो कि एक like around 10 to 13 lakh rupees की बाइक है audience. So मुझे ये जानना है कि being a doctor आप एक बाइकर भी हैं, एक राइडर भी हैं. So ये कैसे पैशन मतलब आपकी लाइफ में कैसे ये बाइक का पैशन क्रिएट हुआ? So would like to know more about it. तो आई थिंक पहले ऐसा पैशन कुछ था नहीं। घर पे जब मेरे अंकल सब हुआ करते थे, उन सब के पास हीरो होंडा वैसे बाइक पड़ी रहती थी। तो लाइक जस्ट नॉर्मल था कि निकाल के चला लिए, ट्राई कर लिए, गिर लिए, संभल गए, काइंड ऑफ अ थिंग। आई डिड नॉट नो इट वाज सच अ बिग इशू। फिर पापा ने एक्चुअली बहुत साल बाद लाइक खुद के लिए रॉयल एनफील्ड खरीदी थी। And by then he had a lot of back issues, so चला नहीं पाए. So he just gave it to me कि at least चलाते रहो so that the engine is warm, it's working. So then we started riding that one, and I really liked the feel of it कि अलग सा एक feel होता है when you're riding a bike, and वो कार से Mhm. एकदम अलग है. And that was how it started. Then I got myself versus पहले था मेरे पास जो almost I think India का first versus था which a woman was riding. Then I have Tiger now, Triumph Tiger. Mhm. And yeah, I like to tour long rides. Usually it's with my husband and friends. Mhm. And yeah, time जब भी मिल जाता है निकल जाते हैं. Great, great. I am also looking to buy a bike like you. मतलब, I'm also into Please this do. right now. It's Yes, yes, worth the yes. investment. I am having like Bullet Royal Enfield right now, so Oh, nice. I'm also One into of that. the best bikes, I would say. I think that Yes, thank you. sound, that whole thing is a very different feeling. Exactly, exactly. So, जैसे मैंने पता हमने रिसर्च करा, so I got to that you're a pediatric dentist, right? So अभी कितने आपके क्लिनिक हैं बैंगलोर में currently? अभी हमारे 7 clinics है अभी बैंगलोर 7 में. clinics. हाँ जी. The plan is Okay. to have only 10 in Bangalore. Beyond that, Mhm. I don't think we want to have in Bangalore. Uske baad, we Mhm. are really looking at tier 2 cities or other places like maybe Hyderabad or Chennai, where we Mhm. can have our brand presence. Okay. So बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होना एंड एट द सेम टाइम एक फाउंडर होना, एक सिंगल क्लिनिक होता है तो एक इट्स काइंड ऑफ एन ईजी जॉब कि आप मैनेज कर पाते. बट यू आर रनिंग 7 क्लिनिक्स, काइंड ऑफ अ चेन. सो आप एक फाउंडर और डॉक्टर वाला हैट कैसे, मतलब दोनों आप कैसे परस्यू करवाते हो? क्योंकि बीइंग अ फाउंडर देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग. आपको रेवेन्यू का देखना है, आपको सेल्स का देखना है, आपको पेशेंट केयर का देखना है. बट बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि मेरा पेशेंट जो है उसको अच्छा सर्विस मिले. सो आप कैसे मैनेज करते हैं? आप कभी आपने कॉम्प्रोमाइज करा है कि नहीं यार पेशेंट केयर चलेगा बट मुझे रेवेन्यू का देखना है? सो हाउ यू मैनेज द फाउंडर हैट एंड द डॉक्टर हैट एट द सेम टाइम? Actually, I think once you're a doctor and once you've started treating, especially children, they're very demanding, है ना? Adults फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा उनको we can manage, but kids are very demanding. And once you've been able to manage them, once you've been able to treat them, once you are able to solve their problems,
आई थिंक बाकी सारे प्रॉब्लम्स कम लगते हैं उसके सामने. सो इवन एज अ फाउंडर वी आर डूइंग द सेम थिंग, राइट? वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स अलग हो हम्म, सकते हैं, लेकिन द स्ट्रैटेजी वी यूज, द thought behind it, the concept behind it remains the same. So I think हम्म, because I'm 20 years, because I'm in the same line, it is about pediatric dentistry, it's about kids, it's about giving them the very best, it's about creating a niche for them so that kids adjust well. Even as a founder, मेरा logic same रहता है. मैं पहले वही पूछती हूँ, is it aligned with what I want to do? Is it helping हम्म, any child across? Is it making it हम्म, easier for them? पेरेंट्स के लिए हम्म, इजी होता है क्या कि ये नजदीक एक क्लिनिक है, एक्सेसिबिलिटी मिलती है, देन आई गो अहेड. कोई भी इक्विपमेंट हम्म, हो गया, आई ऑलवेज लुक फ्रॉम अ किड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन हम्म, मेक द डिसीजन. And so far it's working well, even from the business growth wise. So I हम्म, think it's the same thing, solving हम्म। the problem. तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे लाइन में स्पेशली. एंड एक्चुअली वो लगता है ना जैसे डॉक्टर वाला जो करियर होता है, इट्स लाइक पेशेंट केयर इज इम्पोर्टेंट, बट देन व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस देन थोड़ा सा एक कैपिटलिज्म बोलूंगा मैं वर्ड कि आ जाता हम्म. है कि कैसे मार्जिन निकालना है, कैसे रेवेन्यू देखना है, देन यू हैव सैलरीज आल्सो, देन यू हैव टू मेंटेन द कैश फ्लो आल्सो. बीइंग फाउंडर माई सेल्फ हमें देखना पड़ता है. तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था मैंने कहा आप कैसे सोचते हो गया, मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू हाँ, बी वेरी ऑनेस्ट. यस. करेक्ट. सो सो यही बात करते करते ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, लाइक मेरे अर्ली कॉलेज डेज में जब आई वाज इन कॉलेज देयर वाज माय फ्रेंड, उसकी सिस्टर वाज आल्सो डूइंग द डेंटिस्ट्री कोर्स, एंड जो भी प्रोसेस होता है आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मतलब कहीं ना कहीं मैंने देखा है पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग द डेंटिस्ट. मतलब उनको लगता है कि these guys are not doctors. मतलब डोंट माइंड आई एम हम्म. आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट मैंने नोटिस करा है उनको लगता है डेंटिस्ट्री तो है, बहुत इजी है करना, दे आर नॉट लाइक डॉक्टर्स. सो व्हाट्स योर टेक इनटू इट, कभी आपने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बोलूंगा मैं फेस करा है इन योर करियर की, और ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि डेंटिस्ट इज नॉट दैट अ पर्टिकुलर डॉक्टर? ऐसा क्यों सोचते लोग मुझे नहीं पता. बट दैट इज समथिंग आई कैन नॉट आंसर. बट डेंटिस्ट्री में भी इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू से आई एम अ किड्स डेंटिस्ट, तो क्या फिर लाइक क्या सिर्फ बच्चों के दांत देखते हो? मैंने कहा हाँ, मैंने स्पेशलाइजेशन किया है उसने. लाइक बच्चों के दांत का स्पेशलाइजेशन, वो तो गिर जाते हैं. तो डेंटिस्ट्री में भी इनिशियली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को आई थिंक इवन कम माना जाता था, क्योंकि वी आर लुकिंग आफ्टर टीथ दैट आर गोइंग टू फॉल ऑफ, राइट? परमानेंट नहीं है. But luckily, I think the concepts are changing. It's also how you spread awareness, how you build a brand, how you tell कि नहीं ये बात भी important है, and what are the changes you're bringing about. अभी God willingly, and I don't think that issue है अभी. But हाँ, I think काफी सालों तक वो था कि अरे डेंटिस्ट है, और बैंगलोर में तो हम सारे इतने सारे डेंटिस्ट है. तो और भी लाइक अच्छा डेंटिस्ट है या फिर इंजीनियर है, दो ही चीज है. नहीं काइंड ऑफ अ एग्जैक्ट. थिंग. बट आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेयर यू फोकस टू बी एंड हाउ यू बिल्ड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. सोचने को तो लोग कुछ भी सोच लेंगे. सही बात नहीं, मतलब मैंने सुना है इसलिए मैंने पूछा, डोंट माइंड. हाँ. आई रिस्पेक्ट नहीं व्हाटएवर नहीं. यू आर डूइंग, इट्स नहीं नहीं, कमेंडेबल. इट इज ट्रू. It is absolutely true what you most of them think about dentistry. सो यू आर टॉकिंग अबाउट योर क्लिनिक, सो मैं ऑडियंस के लिए मैं फोटोज अटैच कर दूंगा स्क्रीन पे, सो वीडियोज अटैच कर दूंगा, एंड यू गाइस विल सी आपका जो क्लिनिक है ना, मतलब इट्स कोई अलग ही वाइब है क्लिनिक की. मतलब आई हैव 3 सिस्टर्स, उनके भी 2 2 बच्चे, आई हैव 6 भांजा भांजीज, राइट? सो मैं सोच रहा था कि आपका क्लिनिक दिल्ली में नहीं है, बट अगर होता मैं डेफिनेटली लेकर आता, बिकॉज उनके लिए इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड, Hmm. फॉर देम इट वुड बी लाइक अ डिज्नीलैंड. सो मतलब वो थीम जो आपने रखी है, इट्स काइंड ऑफ अ सी थीम, उसमें आपने बहुत सारे प्रॉप्स और चीजें लगा रखी हैं. सो ये कोई मार्केटिंग गिमिक है या देयर इज अ डिफरेंट रीजन, और कुछ ऐसा रीजन है जो लोगों को आप बताना चाहेंगे कि व्हाई दैट थीम? बिकॉज मैंने नहीं देखा है कभी भी ऐसा क्लिनिक जो एक पर्टिकुलर थी, और उसमें एक्सपेंस भी आपका बहुत ज़्यादा होगा. इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल क्लिनिक, आपने एक्सट्रीम उस पे जाके एक्सपेंस भी करा है. सो व्हाट्स द रियल रीजन अबाउट इट? इज इट मार्केटिंग और एनी अदर रीजन बिहाइंड इट?
तो आई थिंक जैसे आपको देख के ही क्लिनिक लगा कि अलग है कुछ, इट लुक्स चाइल्ड फ्रेंडली, है ना? एंड Mhm. स्पेशली व्हेन द किड्स विजिट, देन दे विल फील द सेम, क्योंकि इट डज नॉट एनीथिंग दैट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद अ डेंटल क्लिनिक. सो उसके बिहाइंड there's a science also. It is called as a multi-sensory environment या sensory Mhm. adaptive dental clinic, SAID बोलते हैं इसको. So what we Okay. do Okay. is, as soon as the child steps into the clinic, we try to distract them using all their senses. क्योंकि उनका Okay. विजुअल क्या है, देखते ही उनको लगता है कि अच्छा ये कलर्स अलग है, हॉस्पिटल्स में ऐसे होते नहीं है. As soon as they step into the clinic, फ्लोरिंग अलग है, तो उन्हें लगता है अच्छा टिपिकली वाइट हार्ड फ्लोर होते हैं हॉस्पिटल में, दिस इज नॉट लाइक दैट. उनका फेवरेट राइम चल रहा होता है कहीं पे, या पेपा पिग चल रहा होता है, सो इमीडिएटली they are distracted. So audio, Mhm. visual, tactile, we try to use all their senses to distract them. And it is also Okay. proven that a Okay. multisensory environment can reduce the stress. So though Okay. the first appeal is visual, कि देखते ही नहीं कुछ अलग है, it feels good. But then there Mhm. is a lot of science behind it, and we've seen a drastic improvement in how the child behaves when they are given Mhm. option कि आपको कौन सा कार्टून देखना है, आपको कौन सा रूम चाहिए, और आपको लाइटिंग कैसा पसंद है, आपको ब्लू चाहिए, व्हाइट चाहिए. उनका स्ट्रेस लेवल इमीडिएटली कम हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि दे आर ऑल्सो इन कंट्रोल ऑफ Mhm. थिंग्स, है ना? सो Mhm. दैट इज Mhm. द That. कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिजाइनिंग ऑल आवर क्लिनिक्स. सो दैट इज व्हाट वी फॉलो एज अ एसओपी, कि हमारे क्लिनिक्स मल्टी सेंसरी होने चाहिए, बच्चों के लिए Mhm. एक्सेसिबल होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए, कि एक बच्चा जो व्हील चेयर में भी है, he should be able to access our clinic. So Understood. there is a lot of science behind the concept. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. सो दिल्ली में कब ओपन कर रहे हैं आप? बिकॉज मैं विजिट करवाना चाहूंगा, सो एनी टाइम सून इन दिल्ली. जल्दी जल्दी. ठीक है, अदरवाइज मेरे को बैंगलोर लेके आना पड़ेगा, सो दैट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव. सो True, true. आई चेक्ड योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड यू वर वेरी एक्टिव. मतलब आई शुड टेल यू दैट यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी. Being a doctor at the same time, I like your personality. Like, well, it's like, a free woman doing whatever she likes to do, and एक आपसे inspiration type मेरे को मिला, right? So Thank you. you are, yeah, and you are having a great brand on social media. So अब आपके 7 क्लिनिक्स हैं, आप सारे जगहों पे तो अवेलेबल नहीं हो सकते, राइट? आप एक टाइम पे एक ही क्लिनिक पे होंगे, बट Mhm. आपके पर्सनल ब्रांड के थ्रू पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू योर ब्रांड. They want their Mhm. children and themselves to be treated by your hands and your care, right? So how Thank do you manage that कि अगर आपके पास ज़्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है कि नहीं मैम हमको तो आपके थ्रू ही ट्रीटमेंट लेना है, बट यू कैन नेवर बी अवेलेबल एट ऑल द पॉइंट्स. सो ये कभी ऐसा इशू क्रिएट हुआ और आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? तो ये was the main problem initially, है ना? क्योंकि हम्म. आई हैव बीन देयर फॉर 20 years. बच्चे जो मैंने जिनको चेक किया है, now they have their own kids who are coming to the clinic, so they would always want that kind of connect, है ना? But हम्म. two things that we've done that has really helped us is to, जो भी मैं करती थी, all the steps that I follow over this years, we've documented as the SOP. So any Okay. doctor who is working with us will follow the same kind of steps. And we Okay. have a open portal where we discuss everything. Like अगर कुछ treatment करना है, parents को कोई concern है, तो we discuss it over call. We have like a collective decision and then take the next step. एंड Okay. सेकेंडली आई एम अवेलेबल ऑन वीडियो कॉल. हमारा टेलीबाइट्स करके एक वर्टिकल है, कि अगर हमारे क्लिनिक में, जैसे कि अगर पेशेंट कहीं दूर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है जो बहुत दूर है यहाँ हम्म. से, तो वहाँ पे हम्म. हमारा एक क्लिनिक है. अगर कोई इमरजेंसी है, तो विजिट द क्लिनिक, वहाँ पे हम एक्सरे ले लेते हैं, फिर ओवर द वीडियो कंसल्ट वी डिस्कस वेयर आई एम हम्म. देयर, द ट्रीटिंग डॉक्टर इज देयर, पेरेंट इज देयर, वी डिस्कस इन डिटेल, and then we take a collective decision on what is best for the child. Like that, हम्म. though I cannot physically be everywhere, we made sure the clinic child has a similar experience, क्योंकि हमने over the period of years ये SOPs बना दिए.
And to, हम्म, finally, even I am available over a video call or a consultation where we can discuss. क्योंकि at the end of the day, parents को क्या चाहिए? They want what is very best for their child. And even we want हम्म, that. So we come to a हम्म, conclusion and then decide on how to take it forward. ग्रेट। टफ रहता होगा बहुत, बट आई स्टिल लाइक इट्स कमेंडेबल। सो एज Yeah. अ वुमन एंटरप्रेन्योर, राइट, इट्स नॉट इजी अभी आज के टाइम पे, लाइक देयर इज वेरी डिस्क्रिमिनेशन। अब तो फिर भी बहुत इम्प्रूव हो गया है, बट हाउ डू यू मैनेज एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर? आई डोंट नो आपके साथ वैसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो ना, बट डिड एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ और जर्नी कभी ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि जहाँ पे आप कुछ पॉइंट रख रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस वुमन एंटरप्रेन्योरशिप थिंग आपको वो एक एक स्टैंड नहीं मिल पा रहा था, एंड यू वर आपको एक्स्ट्रा बोलने का या प्रूफ करने का पॉइंट पड़ रहा था, मे बी इन सम राउंड टेबल डिस्कशंस और समथिंग लाइक दैट, कभी ऐसा हुआ? Uh, I don't know whether it is because of being a woman entrepreneur, yeah, or being from a healthcare and not a direct line of business. But I think Mhm. what has really helped me is being stubborn and stick to the point. So I think if you're right, eventually people will listen to you. First, we have to just stick to the point. We have to be stubborn. We have to keep repeating what we believe in, and things should work out. So मेरे को personally ऐसा कभी लगा नहीं है कि because of a woman I'm finding some हम्म, problems. But I हम्म, think अगर होता तो भी और किसी को हो भी रहा है, my only request or suggestion would be to, be stubborn, always know what you want to do, and just stick to it. Eventually, people will listen. द रीजन आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज मतलब मैंने ऐसी बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करे हैं, एंड ऐसे बहुत से डिस्कशंस देखे हैं जहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं एक वुमेन के माइंड में रहता है कि उनको एक्स्ट्रा, मतलब मैं गलत भी हो Mhm. सकता हूँ बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है मेल एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे ट्रीट करते हुए, सो इट वाज वेरी बैड। सो वही मैंने चाहा कि आपसे पूछूं कि आपके साथ भी ऐसा, बट थिंग्स आर चेंजिंग राइट नाउ। हाँ, हाँ, yeah. सो And it is true. It is true. I don't think women entrepreneurs get equal opportunity, especially funding ले लो, investors ले लो, जहाँ भी numbers की बात होती है, hardcore business की बात होती है. I don't think women entrepreneurs get equal opportunity. But yeah, the only way we can, get is to keep proving them wrong and stand by what we believe. एग्जैक्टली, एंड इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मतलब वुमेन लोगों को मतलब सब बोल रहे हैं कि लाइक लेडीज आर नॉट द राइट फिट फॉर द फाउंडरशिप एंड स्टफ, मैं बोलना चाहूँगा कि हमसे ज़्यादा ही हो आप, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, इनके 3 सिस्टर्स हैं, मतलब यू गाइज आर गुड एट मल्टीटास्किंग। मतलब हमारा तो एक ही चीज़ में दिमाग खराब हो सकता है, मतलब गॉड हैज़ मेड यू गाइज इन अ वे दैट यू कैन हैंडल स्ट्रेस बेटर देन एनीवन। मतलब Yeah. 2 of my sisters have twins, right? Wow. They are doing work from home. They're handling their children till 4 o'clock, till 3 o'clock in the morning. देन सुबह उठ के लॉग इन करके लैपटॉप भी चल रहा है, देन उनका खाना भी बन रहा है, फिर उसके बाद अभी दे आर 5 राइट नाउ, 5 ईयर 5 लाइक 5 ईयर्स एज हो गया उनका, एंड अभी वो उनको स्कूल भी भेज रहे हैं, फिर ट्यूशन भी भेज रहे हैं, डांसिंग क्लासेस भी कर रहे हैं। मैंने कहा यार कैसे कर लेते हैं, यहाँ तो मैं 5 मीटिंग ले लूँ, 6 मीटिंग ले लूँ, फाइनेंसिस के स्ट्रेस मेरा दिमाग खराब हो जाता है। देन आई स्टडीड, देन मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली कि उनने बोला कि female body and mind is in such a way that they can design एक handle pressure a lot better than Mm. us। So जो लोग भी women entrepreneurship को कम समझते हैं, so please ऐसा ना करें, right? So salute to you guys, right? Thank So you. Thank you. आपकी मतलब जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई, मेरी सिस्टर्स को मैंने देखा है ऐसे करते हुए, सो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आप घर पे चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बीइंग अ मैरिड वुमन एट द सेम टाइम? हाउ डू यू मैनेज कि अगर कोई दूसरा वुमन दिख रही है या जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि कैसे लाइफ, मतलब पर्सनल लाइफ और बिजनेस को मैनेज करते हुए कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनके माइंड में होगा ना यार कैसे छोड़ें, बच्चे हैं, चीज़ें हैं, उनको अपना कुछ स्टार्टअप करना है, बिकॉज अभी आज के टाइम पे द एंट्री बैरियर इज वेरी लो, एनीवन कैन स्टार्ट अ गुड बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया। सो Hmm. उनके लिए कुछ एक मोटिवेशन या कुछ की स्टार्ट कैसे करें?
बीच में नेटवर्क नहीं था, हितेश। आई हाँ जी, कुडंट हियर। कैन यू जस्ट रिपीट हाँ द जी, क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो आई एम सेइंग कि जो भी हाउसवाइफ्स हैं, उनके पास अभी बहुत सारे आइडियाज़ हैं टू स्टार्ट अ बिज़नेस थ्रू सोशल मीडिया। ट्रू। बट बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ और बीइंग अ वाइफ, उनको वो स्टेप लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती। सो आप हुँ। उनके बैरियर को कैसे तोड़ना चाहेंगे कि किस तरीके से आप उनको मोटिवेट कर सकते हो? और आपने किस तरीके से मैनेज करा अपनी पर्सनल लाइफ़, बीइंग अ वाइफ ऑल्सो, आपने कैसे मैनेज करा, वो कैसे कर सकते हैं? आई थिंक कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, इट्स लाइक फॉर ऑल द वुमेन, आई वुड लाइक टू से दैट इट्स जस्ट लाइक हैविंग वन मोर चाइल्ड। जब हमारा एक बच्चा होता है या दो बच्चे होते, वी डू नॉट फोकस एक पे ज्यादा, दूसरे पे ज्यादा कम, एंड वी डू नॉट आस्क आवरसेल्फ दूसरा बच्चा होने से हम फर्स्ट बच्चे को कम प्यार करेंगे क्या, या कम टाइम देंगे। हुँ, वी ट्राई टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? सो एज वुमेन वी आर हुँ, केपेबल ऑफ डूइंग वंडरफुल थिंग्स अक्रॉस मल्टीपल वर्टिकल्स। तो हमें बस थोड़ा सा माइंड शिफ्ट करना है, माइंड चेंज करना है। और इवन इफ यू आर एट होम, यू इवन विथ योर चाइल्ड, इफ यू स्टार्टिंग समथिंग, वी जस्ट हैव टू बिलीव इट्स जस्ट अ न्यू चाइल्ड इन द हाउस, एंड गिव इट द काइंड ऑफ अटेंशन जो हम देते हैं, क्योंकि हम घर पे नेचुरली वी टेक केयर ऑफ हस्बैंड, हुँ, फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, एवरीवन। वी डोंट से अगर अरे मेरा हस्बैंड है या पेरेंट्स है तो अब मैं और एक बच्चा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आई मे नॉट बी एबल टू गिव द टाइम। हम कभी ऐसा सोचते नहीं है। So I think entrepreneurship, your business is just like that. And I would really suggest कि start कर दो. That's all. Just be confident, start it. I'm sure all of us are capable of managing it. डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। आई विल शेयर दिस विद माय सिस्टर। वन ऑफ माय तो जो सबसे बड़ी सिस्टर है, शी इज़ डूइंग जॉब राइट नाउ एंड उनको है। सो आई विल शेयर दिस विद हर, सो दैट थोड़ा उनको समझ आए। एक होता है ना व्हेन वुमन टेल्स हरसेल्फ, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। हम लोग बोलते हैं तो उनको लगता है कि तुम तो बोल रहे हो बड़ा ईज़ी है, कुछ भी बोल मैं दोगे। शेयर कर दूँ। हाँ। सो Done, done. ऐसी कोई अनफॉरगेटेबल स्टोरी जो आपके क्लिनिक में हुई हो किसी पेशेंट के साथ, जो आप कभी भूल नहीं पाते हो? फनी भी हो सकती है या कुछ ऐसी जो डराने वाली भी हो? कुछ ऐसी स्टोरी यू हैव इन योर माइंड राइट नाउ जो शेयर करना चाहेंगे आप? Arey, when you work with children, no, every day is filled with stories and memories. और हम अभी we are what 16 doctors, okay? तो जब भी हम मिलते हैं, we'll all be discussing उस पूरे हफ्ते क्या हुआ है, how the kids got us some small छोटे छोटे कार्ड्स बना के लेके आते हैं बच्चे. It is so cute. And also we have a lot of children जो who insist on coming and meeting us. हँसते गले मिल लेते हैं, यू नो, बच्चों में कोई इनहिबिशन नहीं होता है, तो इतना अच्छा लगता है। बीइंग अ डेंटिस्ट, मैंने उनके दांत निकाले हैं, ओके, इंजेक्शन देके। जस्ट डू लव मी सो मच, मुझे इतनी खुशी होती है, आई कैन नॉट टेल यू। सो आर आई थिंक आर व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस इज these memories and these हुँ, stories which will be there forever. Recently, I saw one of my first patient who's getting married. So she had हुँ, come just to give the invitation. And I think ये priceless है ऐसी चीजें. You cannot, you know, define it or put a value to it. But that was really nice. ग्रेट। सो आप मतलब एडल्ट्स को भी ट्रीट करते हैं एट द सेम टाइम चिल्ड्रन को भी ट्रीट करते हैं, लाइक यू आर तो सर्विंग बोथ ऑफ देम राइट? मैं मैं किड्स को ही ट्रीट करती हूँ, बट वी हैव अ टीम हु ट्रीट्स अडल्ट्स ओके, आल्सो, ओके, एंड वी हैव स्पेशलिस्ट फॉर एवरी नीड ऑफ डेंटिस्ट्री, लाइक जैसे अंडरस्टूड, क्राउन्स हो गया, रूट कैनाल हो गया। सो अंडरस्टूड। वैसे द टीम हैंडल्स इट। ओके, सो आपने स्टार्ट पहले खुद से करा ट्रीटिंग चिल्ड्रन एंड देन जब आपको दिखा कि इट्स गोइंग गुड एंड देन आपने स्पैन एक्सपैंड करने के लिए, स्केल करने के लिए आपने और डॉक्टर्स को अपने साथ अपॉइंट करा, हाँ। राइट? ओके, अंडरस्टूड। सो यू सेड दैट आपके पास अभी टीम में 12 डॉक्टर्स हैं, राइट? हाँ। सो अभी मार्केट में तो कंपटीशन है, इतने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं और आजकल एवरीबॉडी इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन क्लिनिक, और बैकएंड पे चल भी रहा होता है छोटा मोटा क्लिनिक। यस। सो हाउ यू आर मैनेजिंग योर टीम कि वो आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आप उनको कैसे रिटेन कर रहे हैं अपने साथ? व्हाट इज दैट ट्रिक, व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी?
नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। आई थिंक व्हाट वी प्रोवाइड जो शायद दूसरे क्लिनिक्स नहीं दे पाते हैं इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। तो वी आस्क द डॉक्टर कि आपको लाइक कितना काम करना है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा चाहिए? क्योंकि कुछ लोग की नई-नई शादी हुई होती है एंड दे डोंट वांट टू वर्क 6 days a week. They would want to start with 2-3 days and then increase the number. So we give them an option. We discuss with them what is their feasibility, what is their liking, how do we make the whole package around them, because they're dealing with children. Only when they are happy, they can do their very best. So it is always a ओके। mutual discussion, and then we see if it's going to work out or not, and then take it forward. So that way, I think we are lucky. We have a wonderful team who's being with us for a long time. So basically, I think we have to see what works for both of us. एक साइड से नहीं देख सकते. That's what. एंड आई फील विदाउट टीम वी आर नथिंग। फाउंडर मतलब Absolutely. स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि सब कुछ हमें ही आता है, मतलब मैं जो काम कर रहा हम जो काम कर रहे हैं, होता है एक ईगो क्रिएट हो जाती है, मतलब जानबूझ के नहीं होता, बट हल्का सा रेवेन्यू आना स्टार्ट होना है कि आपको लेयर बन जाती है कि नहीं यार मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। मेरे साथ भी Yes. हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट देन एक पॉइंट के बाद ऐसा लगा कि सांस लेने का टाइम नहीं हो पा रहा, सो वी नीड अ टीम, एंड देन वी मेड अ टीम। एंड सही कह रहे हो आप, अगर उनके लिए फ्लेक्सिबल नहीं बना पाएंगे, उनके साथ में हम फाउंडरगिरी करते रहेंगे, देन उनको लगेगा यार कि ठीक है तुम अपना कर लो। सो हाँ, यही मैं बोलना चाहूँगा ऑडियंस को कि फाउंडर हो, आप करना चाह रहे हो, बट थिंक ऑफ मेकिंग समथिंग विद अ टीम, सो दैट आप किसी के साथ शेयर भी कर सको वो मोमेंट्स को, एंजॉय भी कर सको। अकेले करके हाँ, बैठ के क्या मजा है यार। अब मेरे को दिख रहा है correct. जितना आप मीटअप करते होगे अपनी टीम के साथ डिफरेंट क्लिनिक्स में से, जब सारे एक जगह बैठते होंगे, सो दैट दैट इज द जर्नी, राइट? वो जर्नी जीने में मजा आता है कि ठीक है सब सेम एक्सपीरियंस शेयर हाँ. कर रहे हैं, एंड देन यू कैन बी प्राउड कि यू आर द वन हु स्टार्टेड दिस, दैट इज द ओनली थिंग टू बी प्राउड ऑफ, हाँ, राइट? क्लिनिक्स तो खुलते रहते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, लाइक वेयर ऑल ऑफ अस आर टुगेदर, नॉट ओनली शेयरिंग। क्लिनिकल हो गया, कोई केस हो गया, कुछ डिफिकल्ट हो गया, डिस्कस करने के लिए नाउ वी आर 14 हेड्स टुगेदर। हम सब सोच सकते हैं कि अगर ये चाइल्ड के लिए बेस्ट क्या होगा करके, या कोई टफ सिचुएशन हो गया, किसी को ट्रैवल करना है इमरजेंसी के लिए, देयर आर अदर डॉक्टर्स, दे जस्ट हैव टू रीच आउट एंड टेल अरे यार मेरे को जाना है, can you just cover up? So it is taken care. तो सबका personal, professional stress handle हो जाता है when you know you have a team that is in sync with you. एग्जैक्टली, So that एग्जैक्टली, really एग्जैक्ट helps. एग्जैक्टली। एंड यू नेवर नो, कभी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप Hmm. अकेले होगे तो फिर कैसे मैनेज करोगे? हाँ. सो या, सो आई एम क्यूरियस कि लेट्स से इफ आई वांट टू स्टार्ट अ डेंटिस्ट क्लिनिक, मतलब एक क्लिनिक मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे पास मतलब एक इन्वेस्टमेंट है, आई एम काइंड ऑफ एन इन्वेस्टर, एंड आई हैव अ Hmm. डॉक्टर ऑल्सो जिनके पास बिजनेस सेंस नहीं है, बट ही इज अ गुड डॉक्टर, ही इज गुड इन सर्विस, ही हैज अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। तो हम कैसे कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ एक क्लिनिक, फर्स्ट क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं? क्या कॉस्ट रहता है? कुछ उसके बारे में आप आइडिया दे सकते हैं? तो क्लिनिक कॉस्ट ऑब्वियसली आपको भी पता ही होगा, इट वुड डिपेंड ऑन द स्क्वायर फीट एरिया, आप कितने एरिया ओके, में क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। सो द ओके, कॉस्ट कुड बी समवेयर even as less as 15 to 20 lakhs, and it can go up to 70 based on the area, आपके उस जगह का ओके, रेंटल, आप कितने चेयर्स ओके, डालना चाहते हैं एंड ऑल दैट। सो ओके, ओके, वो सब डिटेल्स से वी कैन प्लान। आई थिंक एज डेंटिस्ट हम है ही ऐसे कि हमारे बिना क्लिनिक कैसे चलेगा करके वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो हमने लास्ट 10 years वी बिल्ड दैट एसओपी कि आप अगर बस करना चाहते हैं क्लिनिक, वी कैन ट्रेन द स्टाफ, ट्रेन योर डेंटिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ऑल द ओके, एसओपी सारा सेट करके वी कैन गिव यू। सो नॉट ओनली यू ओके, स्टार्टिंग अ क्लिनिक, यू आर एबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ केयर कि ओके, आप बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। यू हैव ओके, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओके, care you provide. You have ओके, documentation of all the revenue, input, output, expense क्या हो रहा है। तो सारे system we build for you कि उसके बाद nothing can stop you from growing. All you have to do is be consistent and growth will happen. अगर कभी आपने या आपके डेंटिस्ट ने 2 हफ्ता छुट्टी ले लिया इमरजेंसी के लिए,
बट यू Mhm. हैव एवरीथिंग कि आप किसी और डेंटिस्ट को रख के वी कैन कंटिन्यू द प्रैक्टिस, कि Okay. कोई भी पेशेंट को पेन में नहीं रहना पड़ रहा है, कोई भी पेशेंट को ऐसा नहीं हुआ तो आपके क्लिनिक आ गए और ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. The Mhm. continuity remains, the quality of care remains, and everything is documented. कहीं से भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. Okay. So अभी आप हेल्प कर रहे हैं ऐसे कुछ क्लिनिक्स को अदर देन योर क्लिनिक विद दिस स्टफ? हाँ, so अभी we have 3 franchisee clinic, 1 box and box clinic. So all this Okay. clinic we are building and helping them with this support. So जो क्लिनिक हम फ्रेंचाइजी का लेते भी थे, जहाँ पे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री से रेवेन्यू बहुत कम हुआ करता था, नाउ दे आर डूइंग एटलीस्ट 2 टाइम्स मोर, बिकॉज़ एक एसओपी सा सेट हो गया है. अगर ये डॉक्टर नहीं है, दूसरे डॉक्टर, फ्रंट डेस्क, एवरीवन आर एबल टू मेंटेन द सेम क्वालिटी ऑफ केयर. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. सो लेट्स से हमने सेटअप कर लिया क्लिनिक एंड यू हैव इन्वेस्टेड रफली अराउंड 30 to 40 लाख रुपीस. सो इतने इन्वेस्टमेंट में एक ईयर में हम कैसे रेवेन्यू, किस टाइप का रेवेन्यू अपन देखने को मिल सकता है इन बिजनेस सेंस? अगर हम बात करें कि हमने कर दिया 40 लाख रुपीस स्पेंड, लाइक व्हाट्स द रेवेन्यू गोना लुक लाइक? तो अगर हम लेट्स से 40 lakhs रेवेन्यू रख रहे हैं, तो टिपिकली वी कैन ओपन से अराउंड 3 चेयर से 4 चेयर का क्लिनिक. अगर हमने 3 to 4 चेयर का क्लिनिक खोलने का सोचा भी है, देन माय सजेशन टिपिकली वुड बी टू हैव 1 or 2 चेयर फॉर द अडल्ट सेगमेंट, सो दैट अगर Okay. पेरेंट्स है, बच्चों रिलेटिव्स के साथ आ रहे हैं, उनको कुछ इश्यू है, दे कैन शो इट टू देम आल्सो. So we will try to break even on the OpEx part by 6 to 8 months. OpEx break even usually हो जाता है clinic में, और maybe it will take us around 16 months to 2 years to break even with the capex. तो आप 2 years पकड़ के चलिए, उसके बाद it is all profit for us mostly. Well, it's a long journey. It's not. Yeah, it is. It's a long journey. Service, हाँ, service industry usually it is a long time commitment, unlike products. सो वही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस को लेना पड़ेगा कि कोई भी किसी भी टाइप का सर्विस बिजनेस हो, यू हैव टू बी पेशेंट एंड पेशेंस इज द वर्च्यू. आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसमें. सो अगर हाँ, हम जैसे रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू इज नॉट गोना कम विदाउट मार्केटिंग. आपने क्लिनिक खोल हाँ, लिया, आपने बस कर लिया और आप वेट कर रहे हैं, पेशेंट्स और कस्टमर्स ऐसे नहीं आएंगे, राइट? सो हाउ डिड correct. यू मार्केट योर बिजनेस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर बिजनेस एंड हाउ यूर मार्केटिंग राइट नाउ? मतलब कुछ केस स्टडी आप बता सकते हैं? I think over the period of years हमने सारे techniques try कर लिए हैं, and I think what really works is like you said, to build a brand presence and to have your Google business page in place, and make sure you're able to generate leads from there and run some ads. Google is one place that people have been going to. And third, but most important, even today, remains word of mouth. So you have to do good work for you to have that repeat patience and a strong follow-up. अंडरस्टूड. सो आई वाज इन बैंगलोर, राइट नाउ आई एम इन दिल्ली. इससे पहले आई वाज इन बैंगलोर फॉर 5 years. सो मैंने वहाँ पर देखा है कि एट इन एवरी मतलब हर एरिया में देर इज अ लोकल डेंटिस्ट. मतलब इट्स लाइक अ सलोन राइट नाउ. इतने सारे डेंटिस्ट हैं, मतलब इतना कंपटीशन है, बट स्टिल मैनी डॉक्टर्स आर ओपनिंग देयर ओन डेंटिस्ट क्लिनिक. सो इतना कंपटीशन है, फिर इसमें इतनी नॉइस में कैसे कोई मैनेज कर पा रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इसीलिए मैं आपको बोला 2 साल लगते हैं. Because people have to know eventually that you are good for them, right? And ओके, that will ओके. take time. And it is dental. वैसे ही dental का लोग are very scared, डरते हैं. दर्द जब तक नहीं है तब तक नहीं जाते रूटीन चेकअप के लिए. The awareness is still less. So more dentists, the good thing is there is scope for more awareness, right? But ओके, ओके. जैसे कि एक डेंटिस्ट और एक पेशेंट है, इवन अडल्ट्स या किड्स ले लीजिए आप, to know that this dentist is right for me, and I would want to be associated
with this particular Mhm. dentist for my child or for myself. That kind of trust Mhm. takes time. But the good thing Mhm. is, this is like जो हम बोलते हैं, lifetime value is much higher. Mhm. So Mhm. it's worth it. पर अंडरस्टूड। अब पेशेंस जरूरी समझना है। ये समझ में आ गया मुझे 2 साल क्यों लग रहे। सो आप ही सवाल बी पूछिए और आप ही जवाब दे रहे हैं एक्चुअली। नहीं समझ में आ गया मेरे को। सो मतलब हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत हँस के बातें कर रहे हैं एंड मतलब इट्स नॉट ईज़ी। बैक ऑफ द माइंड में बीइंग अ फाउंडर बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि यार अब हो गया वो। जैसे आपने बोला 2 साल अगर आपको वेट करना है, 2 साल विदाउट रेवेन्यू, विदाउट फाइनेंसेस, आपने ऊपर से इन्वेस्ट भी कर दिया है, फिर 10 लोग और बोलते हैं एंड आज के टाइम में इतना सबको रिजल्ट्स परसों चाहिए कि मेरा हम्म। अगले महीने ही पैसा डबल होना चाहिए। एंड Yes. सो कभी ऐसा कुछ मोमेंट आया कि आपको लगा नहीं यार लेट्स गिव अप, अब बहुत हो गया है? मतलब कुछ ऐसा मोमेंट आया हो आपकी लाइफ में बिजनेस जर्नी में बेसिकली, सो आपने कैसे मैनेज करा उसको? मुझे लगता है हर फाउंडर को ना 2 हफ्ते में एक बार ऐसा मोमेंट आना ही चाहिए, वरना आप सही नहीं कर रहे हो। ऐसा लगना ही एग्जैक्ट। चाहिए कि यार अब तो बस हो गया, बस अब छोड़-छाड़ के चलते हैं। बिकॉज़ आई थिंक जब आप वो डिसीजन लेते हो, व्हेन यू हैव अ चांस टू लीव एवरीथिंग एंड मूव, बट स्टिल यू स्टिक अराउंड एंड रिस्क इट ऑल, आई थिंक दैट्स व्हेन यू गिव your very best and then eventually you get to see results. So मुझे तो लगता है हर हर फाउंडर को ऐसा मोमेंट आना ही चाहिए 2 हफ्ते में एक बार। That is a sign that you're taking risks. That's a sign you're growing. That's a sign you're evolving. अगर ऐसा मोमेंट नहीं आ रहा है, that means you're in a plateau. You're comfortable. You're, doing reasonably well and you're in a cushion and you're not planning. You're not evolving at least. Growth, जब भी मैं बोलती हूँ सबको ऐसे लगता है कि I'm talking about financial growth, है ना? But it's also individual growth. That एग्जैक्टली। will not come until and unless ऐसे movements आए हैं. So I think I've had quite a lot of them. Especially when starting off, I remember I had pawned all my wedding jewelry just to start my first clinic. कोई ओह बैकअप माय गॉड। प्लान नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी सोचती हूँ तो डर लगता है, मैं क्या सोच रही थी करके। बट सो आई थिंक इट इज़ नेसेसरी कि ऐसे मोमेंट्स आए। यस, इट्स अ वन इन अ लाइफटाइम शॉट की छोटी सी जिंदगी होती है, उसमें एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना सब कुछ दांव पे लगा के हाँ, कि ठीक है लेट्स लेट्स इट्स नॉट टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग, इट्स फॉर प्रूविंग आवरसेल्फ राइट कि वी हैव समथिंग करेक्ट। कि ट्राई करके देखते हैं। सो ऑडियंस में अगर कोई सुन रहा है सो प्लीज दिस इज द टाइम, ट्राई कर लो। ऑब्वियसली गलत डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के, सोच के कि हाँ भाई ठीक है। फेल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही होगा ना, उसके बाद क्या होगा? फेल होगा तो लेट्स सी यू हैव ट्राइड, कुछ नया निकल कर आएगा, राइट? हाँ, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑलवेज लाइक कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो रिस्क लेने का एपेटाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क तो हुँ। कोई आके आपका हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा एंड दे आर लुकिंग फॉर और समवन टू होल्ड देयर हैंड्स। हाँ, और एक चीज़ तो है कि अगर आप कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, यू हैव टू हैव स्लीपलेस नाइट्स, यू हैव टू हैव दिस मोमेंट जो आप ऑलमोस्ट गिव अप करने का सोच रहे हो। आई मीन, आई थिंक पीपल शुड नो दैट दीज़ थिंग्स आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि यूजुअली जो हम सोशल मीडिया में देखते हैं या जिसकी बातें यूजुअली होती है, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़ कि लोगों ने क्या-क्या अचीव कर लिया, कितने शॉर्ट टाइम में अचीव कर लिया एंड दे आर डूइंग सो वेल। बट सब ये बातें डलती नहीं है ना, सोशल मीडिया में बात नहीं होती है इसके बारे में। सो आई थिंक इट्स एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट टू नो, आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, देयर हैज टू बी स्लीपलेस नाइट्स, देयर आर गोइंग टू बी मोमेंट्स जब आपको लगता है कि इट्स द एंड, बट वंस यू क्रॉस ओवर, इट्स अ नाइस लर्निंग पॉइंट टू टॉक अबाउट। एंड इसमें एक वो याद आ रहा है, मैंने एक वीडियो देखा था, लाइक आई वॉच वेरी लाइक बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ मैं यूट्यूब पे अबाउट दिस एंटरप्रेन्योरशिप पॉडकास्ट एंड स्टफ। सो देयर वाज वन गाय वाज टॉकिंग कि इंटेंशन फॉलोज डिसरप्शन फॉलोज इंटेंशन। मतलब जब भी आप कुछ नया करने चाहोगे पहले उसमें आपको डिसरप्शन आएगा ही आएगा। अगर आप बॉडी बनाने के जा रहे हो जिम में, आपको पहले पेन होना है,
राइट? बॉडी हम्म, बननी है 7 to 8 मंथ्स के बाद जब पूरा शेप में आओगे, बट फर्स्ट हाँ 1 to 2 मंथ्स इतना पेन होगा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, सब कुछ भी नहीं हो रहा होगा। सो ही टॉक्ड अबाउट कि जब भी कोई ट्री आप प्लांट करते हो, वो पहले मतलब ऊपर ग्रो होने की बजाय पहले नीचे जाता है, उसकी पहले रूट्स ग्रो होती है डाउनवर्ड्स। सो दिस हाँ इज अ गुड एनालॉजी जो मैं अभी भी फॉलो करता हूँ अपने साथ बिजनेस में, कि ठीक है, इफ इट्स नॉट वर्किंग, इट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड्स, हम्म, तो उसको इतना डाउनवर्ड्स ग्रो होने दो ताकि वो अपना फिर ऊपर की तरफ ग्रो होना स्टार्ट करे। सो दिस इज द हाँ सेम एनालॉजी आई फॉलो राइट नाउ। so like when like lot of women colleagues friends हो गए, they ask कि कैसे सब बैलेंस होता है। मैंने कहा बैलेंस नहीं होता है, I just find comfort in chaos, कि है chaos and we are working towards it, तो things will fall into place। क्योंकि मुझे तो नहीं मिला वो zen moment जब लगता है कि सब ठीक चल रहा है and I think every story is different। बिकॉज इट्स योर ड्रीम ना, मतलब आपने किसी को देखा देखी स्टार्ट नहीं करा है, एंड ये उन्हीं के साथ होता है जो किसी को देख के स्टार्ट करता है। व्हेन इट्स योर हाँ ड्रीम, व्हेन इट्स योर थिंग, आप कंपेयर ही नहीं करते, आप बैलेंस ढूंढते ही नहीं। बट व्हेन हाँ समवन किसी और को देखा देखी स्टार्ट करता है तो फिर उनको कंफर्ट चाहिए होता है। आई थिंक दैट्स हम्म व्हाई, मतलब मैंने सोच पा रहा हूँ आपके साथ, अब मेरी भी सेम थिंकिंग है। नहीं करते अपन बैलेंस, 4-4 बजे तक जग रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए 5 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं। पेरेंट्स बोलते हैं क्या कर रहे हो, गड्ढे पड़ रहे हैं आंखों के नीचे, ऐसी वैसे। मैंने कहा मम्मी नहीं मैटर कर रहा, मुझे मजा आ रहा। सो अ, ऑडियंस को भी यही बोलना चाहेंगे कि इट्स योर थिंग, किसी को दिखा देखी स्टार्ट मत करो, आपको करना पड़ेगा। सो अ, बस कुछ 2-3 और क्वेश्चंस रह गए, थैंक यू फॉर योर टाइम, जस्ट 2-3 और क्वेश्चंस। नो प्रॉब्लम। सो हाँ जी, सो अभी जैसे हमने आपके क्लिनिक की बात करी, क्लिनिक के बारे में बात करी, सो योर स्टाइल इज यूनिक, आपका पूरा थीम जो है वो एक यूनिक है, और इतना कंपटीशन भी है डेंटिस्ट वाले मार्केट में। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपका बिजनेस को इजीली कॉपी कर सकता है या नहीं? अगर नहीं, सो क्यों नहीं कर सकता वो इजीली कॉपी? कॉपी मैं चाहूंगी लोग करें, ज्यादा पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक हो, ज्यादा अवेयरनेस हो, क्योंकि जरूरत तो है ही। ओके। बट मोर देन दैट, जितने भी ब्रांड्स हो जाए, जितने भी वेल फंडेड ब्रांड्स भी आ जाए, आई थिंक ओनली थिंग दैट वी होल्ड वेरी क्लोज एंड विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि हमारा 20 years का एक्सपीरियंस है, और हमने इतनी सारी चीजें सही की है, थोड़ी गलत भी की है। This kind of experience is what truly builds an SOP जो आप replicate कर सकते हो क्लिनिक में। You have the bandwidth to do course correction क्योंकि आपने किया है इतना जल्दी to build your brand। You have the bandwidth कि कोई भी अगर है issue, you would have faced it at some time, so you can connect, correct, reinvent and move forward। Competition तो होना ही है, but only thing we can do is we should be able to readapt and reinvent and move forward। So I think that's what keeps me building, that's what keeps me moving, and that's what I think is fun कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि कोई चैलेंज ही ना हो, है ना? जैसे कि अभी एग्जैक्टली। अभी मैं ऑर्कुट के ज़माने से हूँ जब बाय द टाइम मैंने ऑर्कुट सीखा, वो भी डेंटिस्ट होके, सब बोले नहीं फेसबुक है, फेसबुक ओके, थोड़ा मार्केटिंग उधर स्टार्ट किया, फिर बोले नहीं इंस्टाग्राम ज़रूरी है एंड गूगल ज़रूरी है। अभी थोड़ा इंस्टाग्राम समझ में आया तो लोग बोले नहीं अब तो एआई में भी होना ज़रूरी है। सो वो चेंज होते ही रहता है एंड आई थिंक वी हैव टू रीअडैप्ट एंड मूव। And most importantly, I think if you're honest in every platform, then it shows. So then it becomes easy। या आई लाइक द फैक्ट दैट यू सेड कि आप चाहते हो कि कॉपी हो, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज, नहीं बोलते हैं लोग, और आप लाइव ये चीज़ बोल रहे हैं। आई टेक इट फ्रॉम यू, मतलब मेरे में नहीं था, मेरे को था कि नहीं यार हमारा यूनिक हो, बट आई लर्न इट फ्रॉम, दैट्स द टेक फॉर मी टुडे। सो वन लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स काइंड ऑफ द समरी ऑफ इट, कि आप एक किसी फाउंडर को अगर हेल्थ केयर में जाना है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सो व्हाट्स द वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप उसको देना चाहेंगे जो ऑडियंस में सुन रहे हैं? पेशेंस, हेल्थ केयर में पेशेंस बहुत ज़रूरी है।
And Mhm. especially if you're trying to build something honestly, maintaining the quality, maintaining the ethical care you want to give, maintaining your principle, I think patience is very necessary. And Mhm. I think healthcare is the most rewarding business that you can do, especially if you're dealing with children, because the kind of emotional connect you have with children, it is so honest and it's absolutely a joy. So अगर कोई हेल्थ केयर में जाना चाह रहे हैं तो प्लीज हैव पेशेंस, अगर हेल्थ केयर में जाना ही चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट प्लीज कंसिडर चिल्ड्रन बिकॉज इट्स मोस्ट रिवॉर्डिंग. Thank you so much, Dr. Pramila. It was nice talking to you. And audience को भी I hope मजा आया होगा. And your personality is amazing. Keep doing the great work. मुझे आपसे बहुत inspiration मिली doing your research and looking up to your social media profile. And thank you for giving your time. I hope you liked the conversation. And yeah, एब्सोल्युटली लगा ही नहीं कि हम कुछ प्रोफेशनल पॉडकास्ट कर रहे हैं. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank you for thank, all the effort thank you you. put in researching so that the communication is just fun. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Then see you again in the next episode with you. And आप उस टाइम पे हमें टाइम दे देना प्लीज. ज्यादा बड़े हो जाओगे तो कहीं इग्नोर मत करना. ठीक है. Absolutely ठीक not. है. Absolutely not. Thank you Done. and all the best Thank you. for Podcast Adda. Thank you. Thank you. And कुछ मैंने थोड़े सवाल आगे पीछे पूछ लिया. Then please don't mind. I had a very good intention. And audience मैंने भी start किया है. So please bear with me. So thank you. बिल्कुल नहीं. I Thank you so genuinely had much. a lot of fun. Thank you. Same here. Same, Dr. Bye bye. Thank you. चलो. Bye. Bye.